अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बेटा today we are doing February March 2020 P1 variant 2 MCQs paper. अच्छा, I have recently the recent paper February 25. I have just got it. The next paper will be the latest one, right? जो अभी वैसे क्रैक होकर आया है, ठीक है। अच्छा जी, will you please like to share the question number? And when you will stop telling me, I will start from the reverse order, from the last. Ji. सर क्वेश्चन Sir, 7। person, he said 7. Let's do it first. Okay. 7 and 14. Okay, beta ji, this is a good question, let me tell you. A car moves with a uniform acceleration along this. Uniform acceleration is the main point you need to consider. Acceleration is uniform. Oil leaks from the car at the rate of one drop every 2 seconds. Every 2 seconds, the diagram shows the distance between three successive oil drops from this to this. 2 seconds it took. And then again, next 2 seconds. What is the acceleration? Beta, what information do we have? We have distance and time. We do not about the initial and final velocity. So, but the basic formula for acceleration is final velocity minus initial velocity. We just have distance and time. So what information do you get? Distance divided by time gives you average speed, average velocity. अगर हम इस 9 मीटर को 2 सेकंड पे डिवाइड कर दें तो आंसर दिस विल गिव अस initial average velocity, and this 12 divided by 2 will give us final average velocity, that will be 6 meter per second. So we can take this as u and v. Now what would you take the time? वी आर टेकिंग द एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मिडल में, मीन। यानी ये पूरे इसको 2 सेकंड लगा ना, इट मींस इन द मिडल सेंटर में द वेलोसिटी वाज 4.5। यानी मिडल का मतलब क्या होगा? 2 सेकंड इंटरवल में 1 सेकंड हेयर और इसका भी मिडल में 1 सेकंड हेयर, तो इन दोनों में कितना गैप हो जाएगा? 2 सेकंड का। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, और द इंटरवल बिटवीन दीज टू एवरेजेस, एवरेज मिडिल को कहते हैं ना। तो 2 सेकंड का हाफ 1 होगा, तो 1 सेकंड फ्रॉम दिस साइड और 1 सेकंड फ्रॉम दिस साइड, तो उनमें इनमें जो गैप हो 2 सेकंड का आ जाएगा। नाउ 1.5 डिवाइडेड बाय 2 will give you this is answer, right Hassan? This was a good question, let me tell you. ठीक हो गया बेटा? हसन, कैन यू हियर मी क्लियर? यस सर। समझ आया बेटा आपको? जी सर। ओके, एंड यू सेट क्वेश्चन नंबर 14। इससे अलावा क्वेश्चन भी होंगे तो बताएगा प्लीज। सिलेंडर कंटेन्स अ वॉल्यूम ऑफ गैस एट प्रेशर, द 400 जूल वर्क इज डन ऑन द गैस, उसने बोर्ड किया। बेटा जी, वर्क डन ऑन द गैस हैज अ फॉर्मूला, P is equal to work done is equal to pressure into change in volume, delta V, right? With this pressure remaining constant, what is the final volume? So, पहले तो we can find change in volume. We can do it in more than a way. Change in volume find कर लें. How would you find? Work done over pressure. तो work done है 0.012, pressure है ये work done, sorry, 4,400 है, sorry for this. Work done is 400 and pressure is this. Acha, this will make change in volume equal to this. If I'm not wrong, it's correct, I guess. अच्छा, अब ना
ये हम we have to, this is change in volume. We have to find final volume. How would you find? But when it is said the work done on the gas, it means we are compressing. The volume is decreasing. And when it is said the work done by the gas, then it means the volume is increasing. So here, work done on the gas means this change in volume will be a negative change. The volume will decrease by this amount. So initial volume minus this will give you the final volume. I hope you can calculate it now. So how much it is going to be? Is it B? Okay. जी नेक्स्ट क्वेश्चन हसन समझ आ गया बेटा जी हसन कैन यू हियर बेटा जी सरोज 16 okay a sledge of mass sits on a snowy surface it is pulled horizontally for 10 meters against a frictional force then it is pulled horizontally across ice for 10 meters okay there is no friction between the ice it is lifted up vertically by 1 meter and finally carried back at a constant speed to where it started. During which stage of its journey is most work done on the sledge? So, beta, what do you mean by work done? Work done is force multiplied by distance. For me, na, while lifting, it could be possible. So, let's discuss it mathematically. अच्छा जी, when you are pulling it 10 meter, इतनी friction के against, ठीक है? Pull horizontally 10 meter against friction, then it is pulled horizontally across ice of this. There is no friction between the ice and sledge. So it means there are two parts. So when you are moving against ice, the work done against friction is frictional force multiplied by the distance covered along it. So this is the work done against friction, 2000 joule. But then again, now you move, there is no friction, and it is lifted. There is no friction means here the work will be done by less by that because there is no friction. Okay, so it means less work done is there. So हमें तो वैल्यू मैक्सिमम ढूंढना है ना मोस्ट वर्क तो इसका मतलब यहाँ तो there will be less work done इसको तो we can leave but then we lift it up when you lift up you use the formula mg mass is this g is this and this is going to give you 490 joule तो ये तो कम हो गया उससे finally the carried at a constant speed to where it is started इसका मतलब आपने क्या किया 10 मीटर यू मूव फर्स्ट देन फिर 10 मीटर था आपने मूव किया उसमें देर इज नो फ्रिक्शन लिफ्ट आपने कर दिया फाइनली कैरिड बैक ये आखिरी वाला पार्ट वो मतलब फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड का मतलब एट अ कांस्टेंट स्पीड टू वेयर इट इज स्टार्टेड इट मींस जितना हमने वर्क किया उतना रिवर्स में करके वापस हम जाएं 20 मीटर बैक लेकिन देर इज नो हिंट गिवन ये जो फाइनली वाला पार्ट है ना देयर कुड बी समथिंग स्पेशल so let's have the look at the options being carried back constant speed पे हमने मूव करना है तो हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना है इसका मतलब ये वाला सबसे बड़ा पार्ट पता है क्यों
क्योंकि हमें एक तो इतना सिमिलर वर्क करना पड़ेगा जितना हमें अगेंस्ट फ्रिक्शन यहाँ किया, प्लस ये जहाँ फ्रिक्शन नहीं है वहां भी तो हमने वर्क किया ना, तो ये टोटल वर्क है, यहाँ वर्क सबसे ज्यादा हो रहा है। लिफ्टिंग में हमने कर लिया वो 500 के करीब है, वो ज्यादा नहीं है। भी पुल्ड अक्रॉस आइस कर रहे हैं, तो आइस में हमें कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हमें ये पता है वहां फ्रिक्शन नहीं है, तो इससे कम है। इसका मतलब ए इज ओवर प्रॉपर आंसर। राइट बेटा जी। क्यों? क्योंकि जब हम वापस लेके जा रहे हैं, इट मींस हमें ये फ्रिक्शन वाला वर्क भी करना है, ठीक है, और जो हमने आइस के क्रॉस मूव किया, ये भी हमें वापस उधर सेम पाथ पे उसी लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि हमने कोई और पाथ यूज करना है। इसका मतलब वहां हम ये टोटल वर्क मूविंग इन द आइस एंड मूविंग इन द स्नो, बोथ वी आर डूइंग, सो ए शुड बी द बेटर आंसर। राइट? क्लियर जी? नेक्स्ट 18. Beta, a car travels at constant speed. Constant speed, you have to keep it in mind. The wheel driven by the engine exerts a forward force. ठीक है? The total force due to air resistance friction is this. The weight of the car has a component down the slope. Okay. What is the rate at which thermal energy is dissipated? What do you mean by rate of energy? When I will say the rate of energy, this is power. A thermal energy is comes when we are moving against the friction or resistive force. So it means force will be involved here. And component भी हमें given है, पावर हमने फाइंड करनी है। तो बेटा पावर का फॉर्मूला होता है जो यहाँ यूज ए लेवल में, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। तो जो डिसिपेटेड इन थर्मल एनर्जी वो रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन है, तो वी विल टेक द फोर्स टू बी रेजिस्टिव फोर्स and speed we will take as 25. Just multiplying them will give you the answer. कितना? तो ये आ जाएगा 52,000, यानी 5.3 टाइम्स पावर। राइट बेटा जी? जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हसन, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम? मेरी आवाज आ रही है हसन आपको क्लियर? Sir, question number 4. Hassan says question number 4. And you have any question? 19. Okay, 4 कब कर लेते हैं। The pulse takes to travel from this to this. What is the time is setting? बेटा पल्स को यहां से, ये जो आपने सेंड किए और ये रिसीव किए, तो रिसीव कब होगी, रिफ्लेक्ट कब होगी? इसके मिडिल में ना, यहाँ वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जितना टाइम आगे जाने को उतना वापस आने को, तो उसने जो टाइम दिया है वो ना ट्रांसमिट से रिफ्लेक्टर का ये टाइम दिया है, ये 1.5 डिवियंस। तो यानी 1.5 डिवियन इज 63 माइक्रोसेकंड। सेटिंग कहते हैं एक डिवीजन का टाइम, तो एक डिवीजन का टाइम कितना होगा बेटा? 63 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय 1.5, तो 4.2, 42, 6.3 था, सॉरी 6.3 है, तो 4.2 माइक्रोसेकंड इज 1 डिवीजन पर डिवीजन। राइट? ठीक हो गया बेटा? जी सर। क्वेश्चन नंबर 19 यू सेड सरोज। Okay, the composite rod is made by attaching a glass reinforced plastic rod. You can see this is glass and nylon end to end. The rods have the same cross section area. Each rod is this, length भी same है. Yeah, young modulus of plastic is this and young modulus of nylon is this. The composite rod will break when its total extension reaches this. This is more mathematical question, let me tell you. Not difficult, but calculation.
What is the greatest tensile stress that can be applied to composite rod? भाई stress जो भी होगा will be same in both. Okay, same force is applied on this. तो हमें ये टोटल एक्सटेंशन दी है बेटा. यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला होता है FL over AE. तो फ्रॉम दिस एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? FL over AY. तो अगर हम प्लास्टिक की री इंफॉर्मेशन करें, यंग्स मॉडुलस को Y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, E से भी. तो प्लास्टिक की एक्सटेंशन क्या होगी? फोर्स लेंथ 1 है और एरिया को क्योंकि हमें नहीं पता, हमें ए ही रखा, बस पता है सेम है. एंड उसका जो प्लास्टिक का यंग्स मॉडुलस है वो 40G. जी को डू नोट क्या होता है? जी का मतलब गीगा मतलब 10⁻⁹ प्लस नायलॉन की एक्सटेंशन क्या होगी? फोर्स तो दोनों में सेम होगी, एक वायर में एक ही फोर्स होती, ठीक है. लेंथ उसकी भी 1 है और उसका जो यंग्स मॉडुलस है वो 2G यानी 10⁻⁹. ये दोनों की एक्सटेंशन को ऐड करें तो टोटल एक्सटेंशन है 3 मिलीमीटर. मिली मीन्स. अच्छा बेटा, अब हमें चाहिए स्ट्रेस. स्ट्रेस कहते हैं F over A. इसी को ही कहते हैं, इसको कॉमन लें. अब आप सोल्व करो. दिस इज 40 10⁻⁹ टू 10⁻⁹ दोनों में कॉमन आ रहा है. तो इफ यू अलाउ मी टू टेक एलसीएम, इसका जो आंसर आएगा ना वो फोर्स ओवर एरिया 40 10⁻⁹ ऊपर 21 आ जाएगा. लेट मी शो इट. अच्छा, अब ये इसको इधर ले आए. 40 10⁻⁹ ऊपर और 21 नीचे आ जाएगा. कैन यू जस्ट सोल्व दिस साइड? 2.9 10⁻⁴ मेरे ख्याल में ये करीब 10⁻⁶. हाँ, ए शुड बी द बेटर आंसर. ठीक है बेटा. कितना आ रहा है? अच्छा 5.7 आ रहा है. सॉरी भाई, मेरी मैथ पे ना जा रहा. ठीक है, 5.7 10⁻⁶. ओके, मैंने मैथमेटिकली करने की कोशिश की. जी हो गया. इज इट डन? चले आगे. एनी अदर क्वेश्चन? जी जी हसन, आपको कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर. चलो फिर मैं जब तक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती मैं पीछे से चल रहा हूँ. Which will give the correct type and quark composition of the named particle? न्यूट्रॉन हेड्रोन है, ये तो बात ठीक है. लेकिन वो दो और डाउन और एक अप से बना हो, ये गलत है. न्यूट्रॉन लेप्टोन नहीं है. प्रोटॉन हेड्रोन है, बात ठीक है. और दो अप और एक डाउन से बना हुआ है, तो ये भी बात ठीक है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. फिर कह रहा है इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट आर पी एंड क्यू. बेटा जब ये z-1 हो रहा होता है तो z-1 किस में होता है? पॉजिटिव बीटा. नेगेटिव बीटा में z+1 होता है, तो इट इज पॉजिटिव बीटा. तो ये दोनों ऑप्शन तो गए. और पॉजिटिव बीटा के साथ न्यूट्रिनो होता है, नेगेटिव बीटा के साथ एंटी न्यूट्रिनो होता है. तो ये हमें याद रखना है, न्यूट्रिनो. राइट, क्लियर. अच्छा जी, दो अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे तो अट्रैक्ट तो नहीं होंगे, दे विल गो. तो जो करीब है वो ज्यादा रिपेल होगा, तो ये ज्यादा दूर चला जाएगा, तो इट विल गो लाइक. तो डी इज द बेटर ऑप्शन. ठीक है, जो करीब होगा वो ज्यादा रिपेल होकर वो तो वापस ही चला गया यहाँ पर. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट. In circuit shown, the cell has negligible interference. This भी diagram shows a potential divider circuit that can vary the potential difference. देखो बेटा, यहाँ तो पैरेलल में है. पैरेलल में तो फुल वोल्टेज मिलेंगे, तो वेरी नहीं कर सकता. यहाँ सीरीज में लगा हुआ है, यस ठीक है. लेकिन इसमें ये जो वायर लगा दी है ना, दैट मेक्स इट शॉर्ट सर्किट. इट मींस इसका तो कोई फंक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है.
तो जब ये इफेक्ट ही नहीं करेगा, दे विल बी नो चेंज इन रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब वायर इसमें से पास ही नहीं करेगा करंट, करंट विल पास फ्रॉम दिस टू दिस स्ट्रेट, करंट स्टेज द सेम। तो हमने वेरी करना है, ठीक है, लैंप को, तो ये नहीं। अच्छा, दिस इज करेक्ट, ये वेरी पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर का सिंबल है विच एक्ट्स लाइक पोटेंशियल डिवाइडर। एंड व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? क्योंकि देखिए ये यहां से ना, इधर से तो है कम, जैसे यहां भी जुड़ा हुआ, लेकिन इसका ये एंड इधर जुड़ गया है ना, कनेक्टेड होने का मतलब वो डायरेक्ट बैटरी से जुड़ गया बेटा, उसको हर वक्त फुल वोल्टेज मिलेगी, उसको वोल्टेज वेरी नहीं करेंगे। इसके यहाँ पर हम स्लाइडर को मूव भी करेंगे, उसको तो बैटरी से फुल वोल्टेज मिल रहा है हर वक्त, तो इसकी ब्राइटनेस चेंज नहीं कर सकते, वेरी करनी थी हमने तो वेरी सिर्फ यही होगा, राइट बेटा जी। जो जो इट विल मूव अप, ये ब्राइटर होगा, नीचे आएगा डिमर होता जाए। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर? बेटा हमने क्या पढ़ा हुआ है, जिस रेजिस्टेंस के हमें वोल्टेज चाहिए उस रेजिस्टेंस को कंबाइन रेजिस्टेंस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर के जो अक्रॉस है वो 2 है, कंबाइन रेजिस्टेंस क्या है, ये दोनों सीरीज में है ना, तो दे विल बी एडेड इनटू 6, वेरी क्लोज टू 6, राइट? ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि ये बैटरी सोर्स दिए हुए हैं, तो ईएमएफ दो बैटरीज है, तो बताए ईएमएफ क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? पहले तो देखो बेटा, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका करंट इधर को जा रहा है, अगर लेट्स से सर्किट है, इसका इधर जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा हो ना, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ईएमएफ को, तो जो नेट ईएमएफ होगी वो 12 माइनस 9 यानी 3 होगी, तो सी और डी ऑप्शन तो गए। और ये 0.3 और 0.1 सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो 0.3 एंड 0.1 विल ऐड अप टू 0.4, तो 3 और 0.4 बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट बेटा जी? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर रिकमेंड्स लॉन्गर लेंथ ज्यादा होना and to use with electrical drill, the bigger the cross section area, लेंथ ज्यादा करे तो एरिया भी ऐसा। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन? व्हाई? बेटा रीजन के जब लेंथ ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, वो ओवरऑल करंट को कम कर देगी, तो एरिया का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, डिक्रीज। इसका मतलब बोथ कॉम्बिनेशन विल मेक द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, राइट? अच्छा, अब वो कह रहा है क्यों रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ लेंथ? भाई एरिया के तो साथ है लेकिन लेंथ के साथ तो इनवर्स नहीं, दिस इज रॉन्ग। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, नहीं, लेंथ के साथ तो डायरेक्ट है। अच्छा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू बोथ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, बेटा ये इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज इसने यहाँ प्रोपोर्शन मेंशन ही नहीं किया, लेकिन सिंपल सिंपल प्रोपोर्शन का मतलब डायरेक्ट होता है, तो लेंथ के साथ तो डायरेक्ट है, एरिया के साथ नहीं। अच्छा, लुक एट डी, resistance is proportional, खाली proportion का होता है डायरेक्ट रिलेशन विद लेंथ, यस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यस, ये भी ठीक है, तो बोथ पार्ट्स आर करेक्ट इन ऑप्शन डी, राइट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। A battery is connected to three resistors, the current in this, what is the value? अब तो यहाँ करंट आ रहा है ना 3 एम्पियर, तो यहाँ रेजिस्टेंस डबल है, तो करंट हाफ हो जाएगा, यहाँ करंट उसके डबल हो जाएगा, तो यानी करंट के दो पार्ट, तीन पार्ट्स होंगे, तो वन विल बी 1 एम्पियर एंड देयर विल बी 2 एम्पियर। अब वो कह रहे हैं रेशियो पावर डिसिपेटेड, तो बेटा रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, इसमें से तो द करंट विल बी 3 एम्पियर, तो हमें सबके करंट पता है, तो बेस्ट फॉर्मूला फॉर पावर इज आई स्क्वायर आर, वी आई भी होता है, वी स्क्वायर ओवर आर भी है, लेकिन वी विल प्रेफर, क्योंकि हमें आई और आर पता है, तो 6 ओम का आई कितना है बेटा, 2 स्क्वायर और आर है 6, और 2 ओम का आई कितना है, 3 स्क्वायर एंड आर इज 2। अच्छा, दिस इज 24, दिस इज 18, 6 पे कैंसिल करें दोनों को, 6 4 दा 6 3 दा, तो 4 ओवर 3, राइट? डिवाइड भी कर सकते थे, एनीवे। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ वैक्यूम from one metal plate to another. As a result of this, there is an electric current of this micro and two plates. How many electrons
in 5 minutes. Beta, current kit we have done 3 formulas. I is equal to Q over T, and for number of electron N E over T. इसमें capital N is number of electron और एक होता है NaVe. ये N होता है number of electron per unit volume. This is free electron या free charge density. तो number of electron are only involved here. ठीक है, ऊपर से ना वी आर नॉट नोइंग द स्पीड, हम ये भी नहीं यूज कर सकते, तो दिस इज द ओनली फॉर्मूला वी विल यूज. तो क्या फॉर्मूला होगा? आई इज इक्वल टू एन ई ओवर टी. तो आई कितना है? 48 माइक्रो है. एन वी आर टू फाइंड ई की वैल्यू, एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 10⁻19. टाइम 5 मिनट है, तो उसे सेकंड्स में करना है 60 से मल्टीप्लाई. नाउ रेस्ट यू कैन solve. What will be the answer? 9 10 is for 16. I'm depending upon you. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है ये दोनों, लेकिन डू यू वांट मी टू डिस्कस? इलेक्ट्रिक फील्ड नो मोर इन द सिलेबस. ठीक है, इसमें आंसर ये था कि उसने क्या कि जब इक्वल चार्जेस है, ठीक है, इक्वल अमाउंट, तो नंबर ऑफ लाइंस भी इक्वल होंगी. तो देखो यहाँ से 5 ईच, यहाँ नंबर ऑफ लाइंस यहाँ ज्यादा हो गई हैं, और लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव. अच्छा, इन दिस ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ बैलेंस होने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे. और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है E इंटू क्यू. ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ. और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ये भी है, V इंटू क्यू ओवर डी. तो आपने फॉर्मूलाज नहीं किए हुए, तो इसलिए इस वी कैन लीव. चलिए जल्दी से कर लेते हैं. उसने क्या, वुड नॉट इंक्रीज. तो इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज करते हो तो डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है. तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने से ये ई इंक्रीज हो रही, बट वी नीड विच वुड नॉट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. चार्ज को इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज होगी, ये भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स का चार्ज के साथ. इंक्रीजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज के साथ भी डायरेक्ट इंक्रीज करेगा. ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज मूविंग द ड्रॉप क्लोजर टू पॉजिटिव. बेटा दो प्लेट्स में मगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो जिस मर्जी पॉइंट पे रखें इट विल बी सेम फोर्स, इट विल नॉट इंक्रीज. ओके, अच्छा जी. नेक्स्ट, light of wavelength is incident normally on a diffraction grating as shown. The angle between the two second order n is 2, right? Is this? अच्छा, एंगल हमें हमेशा सेंटर से लेना होता है. तो ये जो फाई एंगल है, इसका मतलब सेंटर से जो एंगल होगा दैट विल बी 5/2. व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ लाइन? बेटा लाइन स्पेसिंग कहते हैं डी को, इसे हम स्लिट स्पेसिंग भी कहते हैं. तो डी हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा. तो डी चाहिए, एन कितना है? 2 है, लैम्डा है, और डी साइन थीटा. थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? सेंटर से एंगल लेते हैं, थीटा/2. तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 लैम्डा ओवर साइन थीटा/2, 2 लैम्डा साइन थीटा/2 इज हियर, राइट? क्लियर? The table shows 4 possible combination of laser wavelength, slit separation. wavelength है, slit separation कहते हैं A को, क्रॉस सेक्शन ये कहते हैं D को. तो which combination results in visible fringes? बेटा visible fringes का मतलब है fringes में गैप ज्यादा है, तो ज्यादा visible होगी. तो जो fringe गैप होता है वो x होता है. इसका मतलब we need maximum value of x. तो x का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी ओवर ए. तो देखो यहाँ लैम्डा दिया है ना, तो लैम्डा को a पे डिवाइड करना है और d से मल्टीप्लाई कर देना है. दिस इज लैम्डा, दिस इज a, दिस इज d. तो आपने यू हैव टू डू विद ऑल 4, which gives you the maximum result will be with answer, right? Clear? So let's move to the next point. ये क्या हो रहा है? डायफ्रैक्शन हो रहा है बेटा.
phenomena? This is a better question. A musical instrument is made by using a long tube with a mouthpiece at one end. The other end is open. एक end open है. अच्छा. Music maintains stationary wave with a node at mouthpiece. तो नोड हमेशा क्लोज एंड पे आता है. इसका मतलब ये एंड क्लोज्ड है और ये ओपन है. उसने यहाँ पे खुद भी बताया. तो एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन ये वाला होता है हमारे पास. इज लाइक दिस. इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 4 एल. अच्छा, इसमें स्पेशल क्या है? इसमें ये जो एन होता है ना, ये ओड मल्टीपल्स होते हैं. यानी एन पहला 1 होगा सबसे मिनिमम, फिर 3 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स. ओड मल्टीपल. तो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये है. दिस इज F1. तो जो अगले वाले अगला होगा ना इससे, वो इसका 3 टाइम्स होगा. इसका 3 टाइम्स क्या होगा? 276. तो ये तो नहीं है. 276 इधर भी है, इधर भी है. उससे नेक्स्ट वाला इसका 5 टाइम्स होगा, वो होगा 460. तो वो यहाँ है. तो C is the correct option. Right? Only odd multiples. जी. What is the order of magnitude wavelength of microwave? बेटा हमने पढ़ा हुआ जिक्सू विमा. इसकी 10⁻0 होती है वेवलेंथ. फिर माइक्रोवेव की -2. इस तरह -2 करते जाए हर एक में, और x की -10 आ जाएगा. राइट? -2 and 10. This will give you. We had done this when we were doing waves topic, right? इस मतलब हमने बहुत डिटेल में waves डिस्कस की थी. An observer is situated at top of a tall tower. An aeroplane emitting sound of frequency इतनी है. Approaches the observer at speed. ये US स्पीड ऑफ सोर्स है, ये फ्रीक्वेंसी है. स्पीड ऑफ साउंड वेव की v है. तो वो अप्रोच कर रहा है, करीब आ रहा है. तो करीब आ रहा है तो इट इज ब्लू शिफ्ट. ब्लू शिफ्ट के फॉर्मूले में नीचे क्या आता है? माइनस. अब इफ यू पुट द वैल्यूज 330. अच्छा, ये 165 उसका एग्जैक्टली हाफ है, और हाफ से डिवाइड करो तो आंसर डबल हो जाता है. तो 2000 विल बी द आंसर. आप करके देख लोगे. राइट? So 2000 will be the answer. D option will be correct. अच्छा जी, next कह रहे हैं base setting is 0.5. What is the frequency? Frequency time period का opposite होता है. तो ये time period कितना है? 4 boxes. तो time period इसको 4 से multiply कर दें, 2 millisecond. और frequency होगा 1 over time period. ये this is time period. तो बेटा बस उसको मिली को कन्वर्ट करना है. मिली का मतलब डिवाइड बाय 1000. तो उसे मिली का मतलब 0.002. तो 500 विल बी द आंसर. ठीक है? क्लियर? Which row describes a longitudinal wave and medium through which? longitudinal wave में जो मूवमेंट की, जो प्रोपगेशन की वाइब्रेशन होती है, और वेव की प्रोपगेशन पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं. और साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द एयर बट नॉट वैक्यूम. कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती. ठीक है? नीड्स मीडियम. A wave of frequency travels at this through. ये frequency driven speed, bit phase difference between 2 points. इसको करने के एक से ज्यादा मेथड है बेटा. वेवलेंथ हमें फ्रीक्वेंसी और स्पीड पता है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेव का फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. तो वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं. v ओवर f यानी 24 over 15 will give you wavelength 1.6 मीटर. अच्छा, इसको इससे कंपेयर किया जाए तो 2 मीटर उससे 0.4 मीटर ज्यादा है. इजंट इट द क्वार्टर? और क्वार्टर वेवलेंथ का मतलब वेवलेंथ एक पूरा साइकिल ही होता है. तो क्वार्टर ऑफ अ साइकिल विल बी द फेज डिफरेंस. राइट? फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट वर्क एस्टिमेट? एस्टिमेट का मतलब हमने एग्जैक्ट नहीं फाइंड करना, तो हमें तो एरिया अंडर द ग्राफ करना है ना, फोर्स और डिस्टेंस ग्राफ में. तो एरिया में ट्राइंगल बन रहे हैं, लेकिन हम इतना मिस कर रहे हैं. इसका मतलब जो हमारा रियल होगा वो इससे थोड़ा ज्यादा. तो अभी बेस कितनी है? 2 मिली. मिली का मतलब डिवाइड बाय 1000.
और हाइट कितनी है इसकी 100, तो आंसर 0.10 आएगा। तो ये 0.10 ये है, तो रियल में उससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो कम तो नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, थोड़ा ज्यादा ये है, ये ज्यादा ही कुछ कुछ ज्यादा हो गया। तो सी इज द बेटर ऑप्शन, राइट? That is all for today. If you have any questions still, you can ask me. हमने तकरीबन 20 क्वेश्चन फ्रॉम द एंड भी कर लिए और आपके प्रॉब्लम भी डिस्कस कर